Today, we will be starting with the types of banks, the services those banks provide us, how they are different, the functions. एंड बेसिकली इस चैप्टर में से जब क्लास 11 आपका आता है तो वन क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इज ई बैंकिंग, because that's a new concept which has just 10-15 years back it has come into, and that's today it has become a part after the specifically after the economic change of demonetization. तो वो सारा हम लोग जो है आज कवर अप करेंगे. This is where we need to start, that is type of banks. मीन्स बैंक के अंदर इवन इसके भी अंदर मतलब यहाँ तो हमारे पास चार है, even within these four also there are subsectors, like there are some specific banks which are only providing services to the agricultural sectors. Now the focus of banking is varied today. पहले क्या होता था, banking was a method of certain financial transactions, लेकिन अब जो है banking has become a complete tertiary business. मतलब आज अगर हम लोग मतलब कई बार तो even I feel irritated because the bank people would go on calling for having the FDs or मतलब कि investing in different schemes. Today they have also become a target based business. तो हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू कमर्शियल, कोऑपरेटिव्स, स्पेशलाइज्ड एंड सेंट्रल. नाउ कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी, यानी कि ये बेसिकली आपके जितने भी कॉमर्स यानी कि बिजनेस को डील करते हैं, मतलब इनका मेन पर्पस ही मार्केट को ओरिएंट करना है. इनका मेन पर्पस ही है जो भी आपका फाइनेंस है उसको पूल अप करना. These are governed under the Indian Banking Regulation Act 1949, and according to it, banking means accepting deposits from the public for the purpose of lending or for investment. In fact, हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर आपका जो if I say कि nationalize हुआ था, that was only in the later period. There are two types of banks. One is the public, that is the government, and the second one is the private sector banks, जो आपके आजकल बहुत ज्यादा आजकल you can see their advertisements and all. Public sector banks को हम nationalized banks भी कहते हैं, and they usually need to emphasize on social objectives than profitability. I have always mentioned this कि अगर आप मतलब एक लोन लेते हो, let us come to this social objective हम कैसे मतलब की करते हैं. Social objective का मतलब क्या है, जहां the rurals, जहां the poor, जहां the untoward जो मतलब की जो बिल्कुल लोग अंडर उसमें है, they are also getting the benefits like opening the account, having the FDs, getting all the facilities of bank, and जो आपका पोस्ट ऑफिस है ना वो भी आपका कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जैसे काम करता है. यानी यहाँ पर आपको मिनिमम डिपॉजिट में यू कैन ओपन एन अकाउंट विच इज नॉट पॉसिबल इन व्हाट यू कॉल एज सोशल, उसमें दूसरे बैंक्स में नहीं हो पाता. See, for example, from urban to rural orientation, class banking to mass banking, traditional to innovative, and short term to development objectives. Now it has become important. पहले बैंकिंग का मतलब होता था जिसके पास पैसा है वो ले रहा, वो रख रहा है, जिसको चाहिए वो ले रहा. नाउ इट हैज बिकम अ फोर्स. फोर्स का मतलब है जहां एक्सटर्नली देयर इज स्पेसिफिकली कुछ
कदम उठाए जाते हैं. Now in the rural areas you don't have the banks. Now it is compulsory कि अगर आप बैंक में काम करते हो, आप में से कोई भी बच्चा बैंक में काम करना चाहता है, तो that person has to work in the rural sector for at least 3 years. And this they have done so that वहां का डेवलपमेंट हो, वहां भी वो चीजें मिले. Private sector banks are owned, managed, and controlled by private promoters. They can be anyone. Like Kotak Mahindra is owned by Kotak. Kotak Group है आपका. And they are free to operate as per market forces. SBI ये आपके one marker question के अंदर आ सकता है. That which are the one under public sectors and one under the private. SBI, PNB, IOB. Are public sector banks, whereas HDFC, ICICI, Kotak, Jammu Kashmir, मतलब जितने भी आपके the one which are now being opened by individuals, जो हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा था, उसके अंडर the banks can be opened. Then we are also having the foreign banks now in India. There are some banks which are operated by foreign nationals. Then second is cooperative. ये आपके वही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ही आता है, बट इनका जो पर्पस होता है, दे आर बेसिकली ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट एंड वन. जहां एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग हो गया, आपका चीप क्रेडिट हो गया, उन्हीं को ये कवर अप करता है. स्पेशलाइज्ड ये आप लोग पढ़ोगे इन द लेटर कि देयर आर सम बैंक्स जो जैसे आपका IDBI. If you have heard this, IDBI, then Exim, इनका काम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इवन ICICI जो है, it is also one of the specialized bank which was basically set up for the industrial purpose. Specialized banks are foreign exchange banks, industrial bank. IDBI मतलब Industrial Development Bank of India. डेवलपमेंट बैंक्स, एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, जो सिर्फ उस एरिया को कवर करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना, टर्न की प्रोजेक्ट्स मतलब जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हेल्प करना, फॉरेन ट्रेड को करना. एंड इन आवर कंट्री द सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक, द सुप्रीम अथॉरिटी. It is the one which controls, supervises, regulatory. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे RBI के क्या क्या मतलब फंक्शंस होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज इट इज द वन जो आपके करेंसी को एक वैल्यू देता है, यानी कि मोनिटाइज एंड डीमोनिटाइज. इट इज द वन विच प्रिंट्स द करेंसी. RBI का जो गवर्नर होता है उसी का जो सिग्नेचर होता है, दैट इज देयर ऑन द नोट्स. इट इज द वन विच कीप्स द चेक ऑन द मार्केट. चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, दे आर आंसरेबल टू RBI. Remember all these points. These are not given in the book yet. These will be coming. These will be coming. दे आर द वन जो कि सब चीजों को जो है मैनेज करते हैं. दे आर द वन जिनको देखना पड़ता है कि द बैंक्स आर मैनेजिंग द मिनिमम CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो. इसको मेंटेन करना हर एक बैंक की जिम्मेदारी होती है. वो इसीलिए कि अगर वो इसको मेंटेन नहीं करते हैं, इफ दे रन आउट ऑफ द मनी, कैश रिजर्व मतलब मिनिमम बैलेंस रखना, and if they run out of money, the bank may be closed, which may be a loss to the public. तो सेंट्रल बैंक का काम होता है ये सारा देखना. प्लस दे ऑल्सो नीड टू सी
कि ये लोग अपना जो क्रेडिट है दे आर गिविंग ऑन प्रॉपर रेट्स, यानी कि जो हमारे रेपो रेट्स होते हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं। एंड ऑल्सो दे सी कि जो उनका क्रेडिट है इट इज गिवन टू ऑल द पीपल हु नीड इट। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक। नाउ लेट अस कम टू द बेसिक कमर्शियल बैंक, यानी कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स के हो या प्राइवेट सेक्टर्स के, उनका काम क्या है। Banks perform a variety of functions. Some are basic, some are or primary, while others are agencies and general utility. यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं। बेसिक प्राइमरी क्या है, सेविंग्स को लेना और आपको क्रेडिट देना। लेकिन यूटिलिटी में आजकल क्या है, आप जाकर बैंक में अपनी स्कूल का फीस भी जमा कर सकते हो। मेनी ऑफ द स्कूल्स आर नाउ अटैच टू द बैंक्स। तो आपको स्कूल में जाकर फीस जमा करने के बजाय सीधा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, देन देर आर सो मेनी अदर सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आपके पेपर में दिस क्वेश्चन कैन बी देयर। Not what are the functions of commercial banks? Deposits are the basis of loan up। ये हम लोगों ने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो कॉमन पीपल होते हैं लाइक अस, एवरीवन, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली वी, एवरीवन हैज अ बैंक अकाउंट। किसी का अकाउंट हो सकता है एसबीआई में हो, किसी का सिंडिकेट में हो, किसी का बॉब में हो, किसी का आईसीआईसीआई में हो। तो इट डिपेंड्स। एंड देन व्हाट हैपेंस, हमारे पास जो सेविंग्स होती है दैट 85% ऑफ द सेविंग्स बैंक जो है उसको यूज करता है फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। तो फर्स्ट व्हाट दे डू इज deposits, they are the basis of the loan operation since both banks are both borrowers and lenders। अभी आपको मैंने बताया that वो हमसे लेते हैं as savings and they give it to those people as credit, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, आपकी एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। As borrowers they pay interest and as lenders they grant loans and get interest। क्लास 10 में हमारा क्वेश्चन था कि हाउ डू बैंक्स मैनेज देयर मिनिमम, जो अपना मेंटेनेंस होता है। तो जो सेविंग्स बैंक होते हैं उनमें उसका जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, वेरएस जब वो लेंडर्स को देते हैं तो दे चार्ज मोर एंड द डिफरेंस दे यूज। These deposits are generally through current account, savings account, fixed account। current deposit can be withdrawn। ये पेपर का 1 मार्क का क्वेश्चन है। करंट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इट इज ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस, इट्स नॉट फॉर द कॉमन। मतलब एक सेविंग्स अकाउंट की तरह हम यूज नहीं करते हैं। करंट अकाउंट का मतलब हम हिंदी में तो उसको बोलते हैं चालू खाता। मीन्स आप जो हो पैसा जैसे भी आपका बैलेंस होता है वॉट एवर योर, जब आप ओपन करते हो तो दे गिव यू अ लिमिट। तो यू हैव द, मतलब आपके पास है कि आप नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको ले सकते हो। यू कैन withdraw the amount without any prior notice। Savings accounts are for individuals। Bank pay rate of interest as decided by RBI and it depends not only on RBI, it depends on the tenure या duration। मतलब डिपेंड करता है अगर आपका अमाउंट कितना है। सीनियर सिटीजन हो, मतलब सबके लिए 0.5 फॉर द सीनियर सिटीजन इज मोर। Withdrawal on these accounts has some restrictions in relation to amount as well as number of times in a given period। This is first is आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। यू नीड टू कीप अ मिनिमम बैलेंस। अब मतलब करंट अकाउंट में तो आपका 0 पर भी चलेगा, नो प्रॉब्स, नो प्रॉब्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरस इन द सेविंग्स बैंक जो मिनिमम अमाउंट होता है आप उससे उसके नीचे नहीं जा सकते हो। मतलब इन द
what we call as public sector banks, it is 1,000 rupees. तो आपका जो 1,000, अगर आपको 5,000 रुपए आपके बैंक में, तो यू कैन विदड्रॉ ओनली 4,000 रुपीज। वो जो 1,000 है वो आप नहीं निकाल सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप उसे क्लोज नहीं कर देते। वेरएस आपके उसमें ऐसा नहीं, करंट अकाउंट पे नहीं है, आप पूरे के पूरे 5,000 निकाल के यूज कर सकते हो। एंड देन आप एक दिन में कितनी बार डाल रहे हो, कितनी बार निकाल रहे हो, इट डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस इन करंट अकाउंट। लेकिन जो आपका सेविंग्स है, साल में आपको टाइम होता है कितनी बार आप निकाल सकते हो। इफ यू आर विदड्रॉइंग मोर देन दैट, देन आपको चार्जेस पे करने पड़ते। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये आपके पेपर का एक जिस मतलब ये जो सारा है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें दिया होगा कि एक बच्चा, एक इंसान है, उसके भाई ने ये अकाउंट खोला था, उसकी बहन ने ये अकाउंट खोला था, उसकी मम्मी ने ये अकाउंट खोला था, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द अकाउंट। Fixed accounts are time deposits with higher rate of interest as compared to savings account. मतलब fixed period and fixed आपका amount। यानी से आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी है ऑफ 1 लाख रुपीज, यू डोंट वांट टू यूज इट फॉर से 1 ईयर, आने वाले 1 साल आपको उसे यूज नहीं करना है, एंड यू डोंट वांट टू आल्सो कीप इट इन सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसीलिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट खोल देते हो फॉर 1 ईयर। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में 5%, 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। So the interest rate is more in fixed deposit, but the tenure is fixed. Moreover, अगर आप टाइम से पहले निकालते हो तो आपको चार्जेस, आपके इंटरेस्ट में चार्जेस आपके माइनस हो जाते हैं। A premature withdrawal is permissible with a percentage of interest being forfeited, जो अभी आपको मैंने बताया। मतलब मान लो आपको 6% मिल रहा है, तो मे बी आपका 1% ओवरऑल में कट जाएगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट इज वन ऑफ द कॉमन वे जिसमें हम लमसम अमाउंट को जो है सेविंग उसमें डाल देते हैं, और कभी भी कोई जरूरत पड़ती है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, वी आर एबल टू यूज इट। सेकेंड इज लेंडिंग ऑफ फंड्स। अब वो लेंड कैसे करते हैं? दे प्रोवाइड लोन्स। लोन आपके इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, बिजनेस के लिए अलग है। देन दे प्रोवाइड यू द एडवांसेस, यानी कई जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें ओवरड्राफ्ट चलता है, ओडी हम बोलते हैं इन सिंपल सेंटेंस। ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, मतलब आपका लिमिट क्या है? 10,000 रुपीज, लेकिन आपका जो आज का जो टर्नओवर जो आपका चल रहा है वो ज्यादा हो गया है, यू आर अलाउड, आपको 15,000 विड्रॉ करने आप कर सकते हो। कैश क्रेडिट्स, यानी कि द वर्ड इटसेल्फ सेज कैश आपको देना एज अ लोन। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन वन, स्पेसिफिकली इन द इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत कॉमन होता है, जहां एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है, एंड इफ द बायर इज नॉट एबल टू गिव ऑन टाइम, तो बैंक उसको पे कर देता है और बाद में लेंडर से ले लेता है। टर्म लोन्स, टर्म मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जो आपके जितने भी, एज आई सेड, हाउसिंग लोन, क्रेडिट, ये इसका नाम क्या है, पर्सनल लोन, दे आर ऑल टर्म, मतलब उनका एक फिक्स टर्म होता है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। कंज्यूमर क्रेडिट्स, अदर मिसलेनियस एडवांस। The funds lent out by banks contribute a great deal to trade, industry, transport and business activities. क्योंकि जब हम कंपनी खोलते हैं, तो कंपनी के पास दो तरीके का मतलब रिक्वायरमेंट होता है। वन इज डे टू डे अफेयर्स, रॉ मटेरियल खरीदना है, 1 साल के लिए उनके पास क्रेडिट कम हो गया है। दूसरा उनका हो सकता है लॉन्ग टर्म, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म के लिए तो वो लोग शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह में चले जाते हैं, या टर्म लोन पे भी चले जाते हैं। बट व्हेन इट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, दे गो फॉर द व्हाट यू कॉल एज शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, उनमें जाते हैं।
और इस तरीके से सारे के सारे जो हमारे बिजनेस है उनके लिए पीछे एक रूट होता है बैंक। चेक आजकल नो डाउट देर आर चेक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई है, येट banks render a very important service to their customers by collecting their checks drawn on other banks. The check is the most developed credit instrument, a unique feature and functions for withdrawal of deposits. आपको बैंक नहीं आप बैंक जाना चाहते हो, यू वांट टू विड्रॉ द, आजकल क्या है, यू आर हैविंग द, इसी को रिप्लेस कर दिया आपके प्लास्टिक कार्ड्स यानी कि डेबिट एंड, आप जाओ, व्हेन यू रिक्वायर यू गो, यू एंटर योर पिन, यू विड्रॉ द मनी, बट otherwise you can go to the bank, present a check and get the money. Secondly, आपको किसी ने चेक दिया है, someone else has given you the check, the person has not transferred it on your account, he or she has given you the check. अब चेक क्या होता है? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपको लिखा होता है पे, आपका नाम, एंड देन द अमाउंट, and the amount in figure as well as the signature and date. So it can be of two types. One is bearer check and second one is cross check. What is the difference between them? अब यहां पर मैंने ये चेक बनाया है, अगर मान लो कि मुझे चेक में आई हैव टू गिव an amount of 1 lakh rupees say to प्रज्ञा, तो मैं यहां लिख दूंगी पे प्रज्ञा एन अमाउंट ऑफ, जो भी आपका यहाँ पे आएगा वो, और यहाँ पे 1,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज जो लिखना है वो लिखकर अपना सिग्नेचर डाल। व्हेन प्रज्ञा प्रेजेंट्स द चेक इन द बैंक, बैंक उसका सारा डिटेल चेक करेगा और उसको कैश दे देगा। दूसरा आपका हो सकता है द क्रॉस्ड चेक, यानी कि इसी में मैंने जो है ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया, मैंने ऊपर क्रॉस कर दिया, देन प्रज्ञा विल नॉट बी एबल टू गेट द कैश, वो अमाउंट उसके अकाउंट में जाएगा, यानी कि जो भी प्रज्ञा का अकाउंट होगा वो पीछे वो लिखेगी, ऑन द बैक साइड ऑफ द चेक शी विल बी राइटिंग द नेम, हर अकाउंट नंबर, कौन से ब्रांच में है उसका अकाउंट, कौन सा बैंक है, वो सब कुछ लिख देगी, एंड देन फ्रॉम माय अकाउंट दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू हर अकाउंट। तो बियरर चेक होता है जिसमें नाम दिया जाता है और इमीडिएटली आपको कैश मिल जाता है। क्रॉस चेक होता है जिसमें आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में बैलेंस जाता है। द नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ फंड्स, यानी कि द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको किसी को पैसा भेजना है, आपको अपने, या फिर से आपको जो है यू हैव टेकन एडमिशन इन अब्रॉड, आपने बाहर जो है ले रखा है, नाउ यू वांट टू नाउ यू वांट टू डिपॉजिट द मनी, देर आर टू वेज। एक आपका होता आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, द सेकेंड इज बैंक ड्राफ्ट। हम लोग जब छोटे थे वी यूज टू हैव ओनली द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल देखने में वो चेक के जैसा लगता है, लेकिन उसमें पहले पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं, देन यू विल बी गिवन द ड्राफ्ट जिसके अंदर जिसको आपने देना है, से आपको जो है अपने कॉलेज को देना है, तो वहां पे उस कॉलेज का नाम, उसका आईएफएससी कोड, उसके सारे डिटेल्स लिखे होंगे और कितने रुपए का ये बैंक ड्राफ्ट है वो लिखा होगा, उसका अमाउंट लिखा होगा। इसको लेकर यू कैन गो टू द कॉलेज, वहां पे आप देते ही योर एडमिशंस आर डन। पहले तो इवन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी आल्सो बैंक ड्राफ्ट वाज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ इट इज ऑनलाइन ट्रांसमिशन। बट ये जो करते हैं बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफर्स, ये सब होता है ऑन नॉमिनल कमीशन। द बैंक
issues a draft for the amount on its own branches at other places or other banks. मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉलेज है उसका भी वही बैंक हो जो आपका है, आपका स्टेट बैंक है, उसका कोई और बैंक है, then then also no problems. The payee can present the draft on the drawee bank at his place and collect the amount. जैसे आपका एडमिशन हो गया है, से यू हैव गॉट एडमिशन इन उड़ीसा, तो आपने जो अपना अकाउंट था उसमें से आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो यू प्रेजेंटेड दैट। इवन अभी भी कई कॉलेजेस के अंदर बैंक ड्राफ्ट इज ओनली एक्सेप्टेड। आई रिमेम्बर व्हेन माय डॉटर वाज इन हर फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल, तो वहां बैंक ड्राफ्ट ही चलता था, ऑनलाइन ट्रांसमिशन नहीं होता था। एलाइड सर्विसेज, एलाइड मतलब एक्स्ट्रा, एडेड। In addition to the above functions, banks also provide bill payments. स्कूल्स के आजकल बिल पेमेंट्स हो गए, आपके एमटीएनएल वगैरह के जो बिल्स हैं, लॉकर फैसिलिटीज। अब अपने घर के अंदर हम सोना चांदी वगैरह तो नहीं रखते, वेयर टू कीप? It is very risky to keep in our homes. So we can take a locker. Now locker कैसा होता है? आपके स्कूल के लॉकर जैसा होता है, जैसे हम उसमें जाते हैं, एक छोटा सा हमारे नाम पर we would be issued. Every year we have to pay a nominal charge, और हमारा सारा सामान से गोल्ड है, सिल्वर है, एनीथिंग, इवन एक मतलब आपके इंपॉर्टेंट घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सब उसमें रख। अंडरराइटिंग सर्विसेज, दीज सर्विसेज आर ओनली फॉर द बिजनेस। मतलब एक कंपनी है, वो कंपनी अब अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच पा रही, द बैंक्स कैन अंडर राइट, यानी कि वो लोग उन शेयर्स को खरीद लेते हैं एंड लेटर ऑन दे सेल इट इन द मार्केट, so they also do those. They also perform services like buying, selling shares, debentures, and personal payment like payment of insurance, premium, collection of dividend, सब कुछ करते हैं। अभी हमारे जो डिविडेंड्स आते हैं, अगर हमने शेयर्स ले रखे हैं, तो शेयर्स में क्या होता है, एक होता है आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, मतलब आपने आज 1,000 रुपए का शेयर लिया था, वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो आपके शेयर की वैल्यू हो सकता है 1,000 से 2,000 हो जाए। एंड व्हेन यू आर मेकिंग दोस, अपने आप अपने अकाउंट्स में जो बना रहे हो, क्रेडिट स्टेटमेंट्स, डेबिट स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, so if in the balance sheet if the company is getting a profit, तो जिन लोगों ने उनकी कंपनी में शेयर्स लगाए हैं, दे आर गिवन द डिविडेंड, यानी कि उस प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, वो हम बैंक्स के थ्रू देते हैं। So these are the services provided by the commercial banks. Now class 11, this is one of the very important, and I have been seeing that for the past 3 years this question has come from the bank sector. और दूसरा आया है match the column में, which is also I think it is there in NCERT, कि आपका जो है कौन सा बैंक, सॉरी कौन से उस बैंक का मतलब क्या होता है, एक वो क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स सेविंग्स बैंक, देन आपका आरडी, एफडी, मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट, ये वाला, ये, these are the types of banks: multi optional, savings, current, fd, demat, escrow and rd. This one has come in the exam, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, दिस कम्स विद द क्वेश्चन लाइक, एक मतलब कि इंसान था अहमद, आई थिंक नाम है, द वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड ही हैड, मतलब उसने ये खोला था, उसके ब्रदर ने ये खोला था, उसकी मम्मी ने ये खोला था, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक, बैंकिंग सर्विस, मतलब कौन सा अकाउंट है वो आपको बताना। एंड जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो आपका आया है ओनली ऑन ई बैंकिंग, क्योंकि ई बैंकिंग हमारा अभी
relatively new concept. E-banking means electronic banking using the web or using any kind of internet service, और उसके थ्रू जो हम बैंकिंग करते हैं, ऑल द सर्विसेज जो हमने ऊपर, हमें क्रेडिट लेना है, हमें डेबिट लेना है, हमें इंश्योरेंस करवाना है, हमें पेमेंट करनी है, एवरीथिंग कैन बी नाउ डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. The growth of internet and e-commerce is dramatically changing every day, with the world wide web and e-commerce transforming the world into digital global village. On the latest in IT is internet banking. So virtual banking, another delivery channel for customers. आज की क्या डेट है? आप मतलब कि आपको even if you want to talk to the customer service at any time you can call the bank. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बैंक में लोग काम कर रहे हैं. देर आर आजकल तो वैसे भी चैट जीपीटी, इसका नाम क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके थ्रू यूज हो जाता है. और एल्स हर बैंक को अपने आप को एसोसिएट करना पड़ता है विद सम कॉल सेंटर, एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे कॉल सेंटर के थ्रू रूट किया जाता है. यानी कि 24 hours 365 days यू आर एबल टू बैंक. इन सिंपल टर्म्स, internet banking means any user with a PC or browser get connected to the website and perform any of the virtual banking functions and avail the services. There is no human operator. The bank has a centralized database that is well enabled. यानी कि आपके पास उनका अब जो सर्विस है, पहले हमारे टाइम पता है क्या होता है, जब हम छोटे थे, मतलब मैं तो तब बात करूँ जब मैं छोटी थी, तो उस वक्त में द बैंकिंग वॉज, अगर मेरा अकाउंट दिल्ली में है तो मुझे दिल्ली में उसी अकाउंट में जाकर सब कुछ करना पड़ेगा. फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ कि आप कहीं पर भी डिपॉजिट कर सकते हो, फिर चेंज हुआ कि आप कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हो. बट अब ऐसा नहीं है. यू कैन गो, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, किसी भी कोने में है वो इंडिया के, यू कैन बैंक इन एनी एरिया. Any service be selected and further interaction is dictated by the nature of service. वो बोलता ना अभी मतलब कि फॉर विड्रॉयल ये करो, इसके लिए ये करो. In this new digital marketplace, banks and financial institutions have started providing services over internet, and they are called as e-banking. They lower the transaction cost, add value to the banking relationship and empowers customer. आज हमें लाइन में जाकर नहीं लगना है. पहले क्या होता था, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, करंट अकाउंट में जाकर, जो लोग मतलब बिजनेस में करते थे उनको घर में किसी ना किसी या फिर अपने यहाँ पर किसी एक इंसान को हमेशा बैंक जाने के लिए रखना पड़ता था. टुडे इट इज नॉट देयर. यू कैन डू इट, एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन. E-banking is electronic banking or using the electronic media. Thus, e-banking is a service provided by many banks that allows a customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking account, applying for loan, paying bill, मोबाइल टेलीफोन और हैंडहेल्ड कंप्यूटर, कुछ भी. एंड अभी हमारे पास क्या क्या है? एटीएम. आप एटीएम जाओ, आपको विड्रॉ करना है, फंड ट्रांसफर करना है, अकाउंट देखना. एंड नाउ मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज आर इवन देयर ऑन आवर मोबाइल ऐप ऑल्सो. सब बैंक के अपने एप्स हैं जिस पर आप ये काम भी कर सकते हो. देन पॉइंट्स ऑफ सेल्स. नाउ व्हाट इज पीओएस बेटा? आप लोग वो जो कार्ड स्वाइप करते हो, व्हेन यू पे द बिल, तो आप कार्ड स्वाइप करते हो ना, उसको पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि कोई भी डेटा को करना है बिजनेस पर्पस. क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश और इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर, यानी कि यूजिंग द वॉलेट्स और ऑल यू कैन ट्रांसफर द अमाउंट. यानी जो ईएफटी है उसको हम दो तरीके से करते हैं. वन इज, ये पेपर में आता है, नेफ्ट, and second is RTGS. Now, what is the difference between NEFT and RTGS?
आपका अमाउंट अगर कम होता है, इमीडिएट पेमेंट होती है, हमारे पास होता है IMPS, देन हमारे पास होता है NEFT, एंड देन आपके पास होता है RTGS. सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर बैंक टू अनदर. अगर बहुत 2 लाख से ऊपर होता है तो दे वुड नॉट बी टेकिंग डायरेक्टली विद NEFT. जैसे हम क्रेडिट कार्ड वगैरह पे करते हैं तो हम NEFT से पे कर सकते हैं. ट्रांसफर होता है, जैसे प्रज्ञा योर फीस इज ट्रांसफर थ्रू NEFT ओनली. So when it is transferred, we use NEFT. Whereas RTGS होता है जैसे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, द अमाउंट इज लार्ज, लमसम, उनमें हम RTGS देते हैं, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. मतलब उसका जो सेटलमेंट होता है आपके बैंक से दूसरे बैंक में, उसका एक टाइम होता है, नॉट इमीडिएट. What are the benefits? It facilitates digital payments and promotes transparency. अब आपको कई बार, पहले हम लोग तो बैंक रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट है हमारा 3rd चैप्टर है, वो हम पहले तो बहुत ज्यादा रहता था, बिकॉज कई बार कैश आपका जो है व्हेन इट हैज बीन डिपॉजिट इट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड. बट नाउ देयर इज सम ट्रांसपेरेंसी. We for the customers it is 24 by 365 into 7 आपका है. Customers can make some of the permitted transactions from home or office while traveling. Not everything can be done, but कुछ चीजों को तो हम करते ही हैं. We are doing it. It indicates a sense of financial discipline. पता क्यों? मैं खुद इस बात के लिए मतलब कि आई एम एन एग्जाम्पल. इवन दो आई एम नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट, मैं खर्चालू नहीं हूं, स्टिल स्टिल होता है आपके हाथ में कैश है, वेयर 100 रुपीज और 500 रुपीज नोट पेंड आपको नहीं पता है, बट वेन यू आर यूजिंग अ मोबाइल ऐप तो आपके पास हर चीज रिकॉर्ड हो रही है. तो आपका क्या होता है, वेन यू लुक तो आपको समझ आता है कि आपने यहाँ पैसा ज्यादा खर्च किया है. तो वो आपको आगे के लिए थोड़ा सा इट हेल्प्स यू आउट. Greater customer satisfaction by offering unlimited access to bank, not limited by the walls of branch, and less risk and greater security to customer. क्योंकि अभी हमें कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, whether we are using a national or international. Even international के लिए भी there are certain international debit cards जिसमें आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है. आप वहां पर भी जो पे करते हो उस करेंसी में पे कर सकते हो, इफ यू आर हैविंग एन इंटरनेशनल debit or credit card. But most of the countries outside they prefer credit card, not debit card. वो भी आपके लिए आसान हो जाता है. इवन मतलब यहाँ से दूसरे, पहले में क्या होता था मुझे याद है, हम लोग पहले एक बहुत टाइम से पहले था, वी हैड गॉन टू दिस ऋषिकेश, एंड वहां हमें ATM ढूंढना पड़ता था. बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, आप किसी भी बैंक के ATM से जाकर अकाउंट निकाल सकते हो. So this has become very easy for us. Then it provides, मतलब ये तो हमारे लिए था. For the banks, मतलब these जो थे, they were for the customers. I repeat that this is one of the very important question. What are the services provided by banks to customers? है तो ये 5 है आपके. And what are the services provided to banks? मतलब बैंक को कैसे फायदा होता है? First, it provides competitive advantage. कंपटीशन में रहता है. आज की डेट पर आप देखो ICS और HDFC दोनों प्राइवेट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मतलब की टक्कर में रहते हैं. SBI in the public sector is always on the top. They provide unlimited network to the bank and is not limited to number of branches. Any PC connected to the modem and telephone having internet can provide cash withdrawal needs of customers. लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस. क्यों? क्योंकि अब सेंट्रलाइज डेटा है. अब पहले क्या होता था, अगर आपका अकाउंट दिलशाद गार्डन में है तो आप दिलशाद गार्डन के ही बैंक में जाकर खड़े होते थे, और एक पर्टिकुलर डेट वहां पर बहुत लंबी लाइन होती थी और बैंक के ऊपर लोड होता था. नाउ इट इज नॉट देयर. आपका अकाउंट चाहे दिलशाद गार्डन में है या फिर आपका अकाउंट शादरा में है, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम एनी. तो यानी कि लोड आपका कम हो जाता है, सेंट्रलाइज डेटा है तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है. And it is in fact, on other hand, it is also enhancing the development of the country, because it is, a system.
ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। एंड इसकी वजह से क्या है कि नाउ बैंक्स आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट वी कॉल एज डेबिट एंड क्रेडिट या सेविंग्स और क्रेडिट, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। आज बैंक इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर भी है, आज बैंक जो है वो और दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी है। दे आर इनटू द म्यूचुअल फंड सेक्टर्स आल्सो, यानी कि इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली they are helping in the overall development of the country. So that is the concept of banking. बैंकिंग में हमारे पास हैं कमर्शियल बैंक यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देन वी हैव द स्पेशलाइज्ड बैंक यानी कि जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं, आईडीबीआई, नेबार्ड, नेबार्ड इज फॉर द रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। Then we have the cooperative banks, which are also providing the services of bank plus they are for the cooperative, मतलब उसको जो सेट किया जाता है वो उसी आधार पर किया जाता है जैसे आपका कोऑपरेटिव होता है। Then you have the central bank, which is the Reserve Bank of India. Then we studied the basic functions that banks provide, और उसके अलावा हमारा एक स्पेशल है वो है ई बैंकिंग यानी कि बैंकिंग यूजिंग द इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के आपके पेपर के अंदर बेनिफिट्स ओवरऑल, देन बेनिफिट्स टू द कस्टमर एंड बेनिफिट टू द बैंक आपके आता है। तो दैट इज बैंकिंग सर्विसेज।